صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کراچی میں اسٹریٹ کرمنل، کچے کے ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کے خلاف بڑے آپریشن کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت دی کہ وہ سندھ حکومت سے مل کر اسلحہ اور دیگر سہولیات کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ صدر مملکت نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ پولیس افسران کی کارکردگی پر نظر رکھیں، جب وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوں تو ہٹا دیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں امن و امان سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ رپورٹ کریں گے کامران سہیل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کی صوبے میں امن و امان سے متعلق بریفنگ۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ اسٹریٹ کرائم کے 48 واقعات میں 49 شہری جان سے گئے، 43 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور 13 ملزمان مقابلوں میں مارے گئے۔ جرائم کے عالمی انڈیکس میں کراچی کا نمبر 82 ہے، جو 2014 میں 6 نمبر پر تھا۔ مارچ اور اپریل کے مہینے میں کرائم کا گراف گرا ہے۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کچے میں 4 ماہ کے دوران 103 افراد کو اغوا کیا گیا۔ ڈاکو کے خلاف آپریشن میں 63 کو ہلاک، 120 کو زخمی اور 418 کو گرفتار کیا گیا اور مختلف اقسام کے 469 ہتھیار برآمد کیے گئے۔ آپریشن میں 17 پولیس اہلکاروں نے شہادت کو گلے لگایا اور 27 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ وہ کراچی میں اسٹریٹ کرمنل، کچے کے ڈاکو اور منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کریں۔ کہا وفاق سے جو مدد درکار ہو وہ ملے گی۔ صدر مملکت نے وفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ اسلحہ اور دیگر سہولیات کے لیے سندھ حکومت کی مدد کرے۔ آصف علی زرداری نے کہا کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کراچی سے چھینی گئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کہاں جاتی ہیں۔ صدر مملکت نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز کراچی۔ سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج کراچی میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں امن و امان کے قیام کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں شہود قریشی بتائیں گے۔ جی شہود۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آج صوبائی کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں ڈی جی رینجرز، کور کمانڈر کراچی اور آئی جی سندھ سمیت دیگر حکام اس میں شریک ہوں گے۔ کافی بڑے فیصلے جو ہے اس میں جو ہے ہونے کا اندیشہ دیا جا رہا ہے کہ کافی جو شہر کی امن و امان ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کافی فیصلے جو ہے کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری کے زیر صدارت اجلاس ہوا تھا، جس پہ امن و امان کی صورتحال پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ شہر میں ان دنوں امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہے۔ چوری، ڈکیتی، قتل کی جو قتل ہے وہ عام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ شہری اس وقت یہ عالم ہے کہ شہر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے فیصلے کیے جائیں گے کہ آیا کچے کے ڈاکوؤں پر کس طرح سے جو ہے وہ عمل لایا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ قابو کیا جائے۔ تو آج کا جو اجلاس ہے کراچی کی صورتحال سے کافی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکے، اس حوالے سے آج یہ اجلاس جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شہود، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے صدر مملکت سے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی۔ سرفراز قائم خانی کی رپورٹ۔ کراچی میں صدر آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ ایم کیو ایم وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال اور دیگر شریک تھے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایم کیو ایم وفد کا سندھ خصوصاً کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر صدر مملکت سے شدید تشویش کا اظہار۔ آصف زرداری سے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کر دی۔ ملاقات میں ملک کے موجودہ سیاسی و معاشی بحران اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا۔ ایم کیو ایم وفد نے سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرفراز قائم خانی، نیو نیوز کراچی۔
वफाक ने सूबों की डिमांड पर 1 मिलियन टन गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी है। गंदम हुकूमत ने नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की। गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर में प्राइवेट सेक्टर 1.2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर चुका था। तहकीकात करना चाहते हैं तो करें, किसने रोका है? गंदम की दरामद पर मुझे मुजरिम साबित किया जा रहा है। फैसले से आवाम को फ़ायदा मिला, हमें मुर्दे इस्लाम ठहराने वाले सियासत कर रहे हैं। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का पहली बार मौक़िफ़ सामने आ गया। न्यू न्यूज़ की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू के दौरान कहा, हमने कोई भी गलत फ़ैसला नहीं किया था। ये कोई टमाटर नहीं जो ख़राब हो जाएंगे। गंदम को 3 साल तक महफूज बनाया जा सकता है। अनवारुल हक काकड़ ने अपने दौरे हुकूमत में ब्लैक में खाद खरीदने का एतराफ़ भी किया। बीच में क्या होता, अगस्त और सितंबर 2023 के बीच में 1.2 मिलियन टन वीट प्राइवेट सेक्टर रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है, वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी है। हमारी समरी तो आई बाद में। ये ईसीसी के लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन आई, तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि जी लेट्स डेफर द डिसीजन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, वी विल नॉट टेक मॉरली, हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए तो लेट देम हैंडल दिस। पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई और इजाज़त मांगी गई ईसीसी में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी। जो ही ये मैच्योर हुआ और इसने टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाना था, तो दोबारा इस पे व्यू ये आया कि यार ये अपनी इजाज़त जो दे रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ये तो फिर हम एक नए क्राइसिस में फंस जाएंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं? हमने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अब इस बीच में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया, उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। हमने अगर पैसे बनाने होते तो हमें तो रिजीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी कि आप परमिट 2 लाख टन का है या 20 लाख टन का है, आए जिसको चाहिए बताएं, हम दें आपको। जब गवर्नमेंट कमिटमेंट देती है तो क्या उसको फुलफिल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर प्रोक्योरमेंट जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट प्राइस की दी है वो ले ले, किसान का एहतजाज खत्म हो जाता है। टमाटर है, खराब हो जाएगा। तो 3 साल ये इसकी लाइफ है। आप अगर आज भी खरीदते हैं, आप स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास है, आप बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। ये किसानों ने ब्लैक में खाद खरीदी है सर आपके दौर में, ये बकायदा रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल खरीदी है। क्यों मैंने उससे इनकार किया कि उन्होंने नहीं खरीदी? वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान दौर में खरीदी गई गंदम की तहकीकात की मंजूरी दे दी। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक की सरबराही में टीम तहकीकात करेगी। टीम गंदम की खरीदारी की तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबर मियां मुश्ताक को चेयरमैन लगाने का फैसला भी किया है। मियां मुश्ताक की FPSC में 13 महीने सर्विस बाकी रहती है। 15 कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले मियां मुश्ताक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। किसानों का पुरअमन एहतजाज जारी है। जुम्मे को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, लाठी चार्ज और तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान भर में अब किसान सड़कों पर निकलेंगे। बच्चे, माल मवेशी सब सड़कों पर होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कई किसान गिरफ्तार हैं, कुछ के वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ऐलान करेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, जीटी रोड्स पे, जहां जहां से हमारे गांव गुजरते हैं, वहां हम बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रालीज पे, अपने रोडों पे आके एहतजाज करेंगे और ट्रेन पे बैठ के हम उन जो हमारे लोग मुसाफिर आएंगे उनको हम अपनी जो गंदम माफिया ने खा जानी है उनकी रोटियां बना के उनको देंगे कि हमारे पास रोटियां, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे साथ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मजबूत पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान में सरमायाकारी मंसूबों का ऐलान करेंगे। सऊदी कारोबारी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में यौम मज़दूर की तकरीब से खिताब, कहते हैं बजट में कोशिश करेंगे मज़दूर की तनख्वाह में इजाफा करें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़दूरों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। कारोबारी हज़रात, पाकिस्तान महंगाई उसने आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग बना रखा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में खुशहाली आए। चंद दिनों में सऊदी
कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। लेकिन मैं आज यौम मई के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कारोबारी हजरात की खिदमत में इंतहाई सदके दिल से मेहनत कश है, उनके बच्चों के लिए तालीम, स्कूल और उनके लिए इलाज के लिए वो हम मंसूबे बनाएं जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बनाए जाते हैं। PIA की निजकारी हो रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर दिए जाए। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल्स नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत को दे। निजकारी से बेहतर है हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। आइंदा बजट में सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में इजाफा करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। कहा, अशराफिया का कारोबार मजदूरों के खून पसीने की वजह से चलता है। पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मई वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें जिसका फायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे ही वजीर आजम बनी तो अपनी पहली ऑर्डर ये थी कि वो तमाम जो लेबर के नुमाइंदे थे, जो सियासी कैदी थे, उनको रहा किया जाए। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी जो मजदूरों के जिद्दोजहद है वो आगे बढ़ाई थी। अगर अशराफिया पैसा कमाते हैं तो वो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से पैसा कमाते हैं। अगर इनका कारोबार चलता है तो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से उनका कारोबार चलता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा बड़ा सिंपल है कि मजदूरों को अपना मेहनत की सिला मिलना चाहिए। और हम फख्र करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेकर आज तक हम मजदूरों की ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें वो आइन दिया जिसमें मजदूरों का मेहनत आर्टिकल 3 में 1973 की आइन में मजदूरों का मेहनत और उनको मेहनत का सिला मिलना का जिक्र है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में मजदूरों को सबसे पहले हक मिला। उनको न सिर्फ यूनियन साजी का हक मिला मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसे इक़दाम उठाए ताकि हम मजदूरों को उनका सिला दिलवा सके। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक पर करने पर गौर। तर्जुमान PTCL का कहना है FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के तकरीबन 5 लाख सिम कनेक्शंस को ब्लॉक करने की हिदायत का जायज़ा ले रहे हैं। ये मामला हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुतल्लिक़ा कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में इस हुक्म का जायज़ा ले रहे हैं। हमारी तरजीह सारिफिन के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुतल्लिक़ा कानूनी दफ़ात की तामील को यकीनी बनाना है। मसले को मौसर और ज़िम्मेदाराना तरीक़े से हल करने के लिए PTA के साथ करीबी राबते में हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड अस्पतालों में आम अस्पताल वाली तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं, पहले कंटेनर्स धरने के लिए इस्तेमाल, अब इससे गरीब का इलाज होगा। कंटेनर का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात को बंद कर दिया। मुफ्त अद्वियात आवाम को उनके दहलीज पर पहुँचाएंगे। 2 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टिकटॉक बन रही हैं। आप AC वाले कमरों से निकलें, खिदमत करें, आपकी भी वीडियोस बनेंगी। फील्ड अस्पताल का क़याम नवाज शरीफ का ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं ये पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स आज
से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। लोगों के डोर स्टेप पे सेहत की सहूलियात पहुंचाई जाएं। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। कंटेनर्स को गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये हॉस्पिटल पहले बनाया था। पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। मेरे पे इल्जाम लगता है, मैं टीवी देखती हूँ, हंसती भी हूँ, टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमराज होते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सिंध एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज सुबह 9 बजे कराची में तलब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम आज मौलाना फजल रहमान की क़यादत में कराची में मिलियन मार्च करेगी। JUI की जानिब से पावर शो के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से जलसे और मिलियन मार्च की ताहाल इजाज़त नहीं दी गई। मौलाना के मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JDA के रहनुमा और कारकुन भी शरीक होंगे। JUI रहनुमाओं के मुताबिक वो अवामी ताकत का मुजाहरा हर सूरत करेंगे। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने भी एहतजाज रोकने के लिए कमर कस ली। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा, हम कहते हैं हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलती, हमारा सेनेट नहीं बोलता, ये अलमिया है। मौलाना फजल रहमान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ऐलान करे। यकीन है मुझे इन अल्फाज पर DI खान जेल में मौलाना की जानिब से खाना मिल जाएगा। जवाब में मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा, पता नहीं कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमें डांटा है या अपने ससुराल को। शहबाज शरीफ की हुकूमत कब है, जिनकी है उन्हें डांटें। मौलाना की बात पर हॉल में कहकहे लग गए। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा, हम कहते हैं हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलती, हमारी सेनेट नहीं बोलती, ये अलमिया है। मौलाना फजल रहमान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ऐलान करें। हमने फ़लस्तीन को भी यकीन दिलाया है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कटने के तैयार है। अमेरिका तो खुद इंसानी हुकूक का कातिल है। तारीख में सबसे पहले अगर एटम बम इस्तेमाल किया है तो अमेरिका ने इस्तेमाल किया। करोड़ों इंसानों को अगर कत्ल किया है दुनिया में तो मगरबी सरमायादारी ने कत्ल किया। हमास ने हमला करके दोबारा से फ़लस्तीन के तस्वीर को उजागर किया। दुनिया को फ़लस्तीन की आज़ादी के मौजूद में बात करनी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन की आज़ादी के मौजूद में बात करनी होगी, इस्लामी दुनिया को फ़लस्तीन और कुद्स की आज़ादी की बात करनी होगी। मौलाना फजल रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहा, फजल रहमान पहले कहते थे PTI की हुकूमत में उन्होंने गिराई, अब कह रहे हैं PTI की हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी। अच्छी बात है, मौलाना फजल रहमान सच बोल रहे हैं। कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। आज हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँ कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई तो बाजवा साहब ने गिराई है। ये जो आपके कोल और फेल में तजाद आ रहा है, बार बार इसको क्लियर करें, कुछ मजीद बातें करें, आगे बढ़ें। आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि कोई पता नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस उम्र में अगर कलमा पढ़ के कलमा हक
और सच की तरफ आप आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब के बेशतर इलाकों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मौसम खुशगवार है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सूरज और बादल के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है सुबह का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हवाले से बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है सुबह सवेरे से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह सवेरे से सूरज जो है निकला हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मौसम जो है खुशगवार है। गुज़श्ता रोज़ की बारिशों के बाद जो है मौसम जो है खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर बात की जाए हवा मिनमी के तनासब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा मिनमी का तनासब है वो तकरीबन 65% मौजूद है और हवाएं जो है 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर का मौसम जो है खुशगवार रहने का इम्कान है, क्योंकि आज जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का एक सिलसिला जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है सुबह के मौसम खुशगवार रहने से जो है शहरी जो है पार्क का रुख कर रहे हैं, रोड पर जो है साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह मॉर्निंग वॉक जो है कर रहे हैं और वर्जिश करने में जो है मसरूफ है। इस्लामाबाद के शहरियों ने खुद को फिट रखने के लिए वर्जिश को मामूल बना लिया। शहरी सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क्स का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आयशा शुएब। जी बिल्कुल, कानों में रस घोलती परिंदों की आवाज़ें, सुबह सवेरे इस्लामाबाद के खूबसूरत हसीन नज़ारे, चारों जानिब सब्ज़ा और हरियाली ना सिर्फ आँखों को ठंडक बख्शती है, इसके साथ साथ रूह को भी तरोताज़ा रखती है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हमें सुबह सवेरे शहरियों का रश नज़र आता है, जो आकर ना सिर्फ वॉक वर्जिश करते हैं बल्कि सुबह सवेरे तरोताज़ा हवा लेने के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो शहरी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ाई में भी नज़र आते हैं। इस्लामाबाद के इस वक्त कचनार पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग वॉक वर्जिश के साथ साथ मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कोई यहाँ पर पढ़ाई में मसरूफ़ होता है तो इसके साथ साथ कोई सिर्फ यहाँ पर घने दरख्तों की छाँव में ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो भी खासा खुशगवार है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद का खूबसूरत कचनार पार्क है वहाँ पर भी इस्लामाबाद के शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है कि सुबह की वॉक और एक्सरसाइज के साथ साथ मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को वो मसरूफ़ रखते हैं ताकि सारा दिन उनका अच्छे से ज़बरदस्त अंदाज में गुजर सके। जी दीगर खबरों में आपको बताएं, पंजाब में ईरानी तेल की स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 13 रूट से ईरानी तेल की स्मगलिंग में 105 स्मगलर्स, कस्टम्स, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के दर्जनों अफसरान और एहलकार सहूलतकार हैं। कस्टम्स हुकाम ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पेश कर दी। टंडवाला यार के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर 12 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। 2012 में शुरू किया जाने वाला मंसूबा आज भी नामुकम्मल है। तालिबात आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात सैयद ग़ुलाम हैदर बुखारी से। जी बुखारी। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इमारत के बाहर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मंसूबा जो है 2012 में दिया गया था डिग्री कॉलेज का, लेकिन 12 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है ये पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका है। या इसका इफ्तिताह जो है साबका MNA शमशाद बचानी ने जो है इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन अब तक जो है ये अनकम्प्लीट है। टंडोलियार के जो तलबा हैं वो आला तालीम हासिल करने के लिए वो शहर से बाहर जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ के लोकल MNA जुल्फ़िकार सत्तार बचानी से कि ये आपके वालिदा ने जो एक मंसूबा का जो इफ्तिताह किया था इसको जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कराया जाए, ताकि हमारे जो बच्चियां हैं वो आला तालीम जो वो टंडोलियार शहर में ही जो है वो हासिल कर सके। जी
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی رائے عامہ کے مطابق اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے فلسطین کی درخواست پر نظر ثانی کرے اور اس کی سفارش کرے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے فلسطینی عوام کے خلاف تاریخی ناانصافی کا ازالہ ہوگا اور دو ریاستی حل کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نئے اراکین کے داخلے پر ویٹو کے استعمال پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا کہ ویٹو ختم ہونے کی صورت میں امن کے لیے جانے والی سفارتی کوششوں کو خاصی رفتار ملے گی۔ سفیر اکرم نے گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران فلسطینی عوام کی حالت زار کا خاکہ پیش کیا، جس میں حق خود ارادیت سے انکار، اپنے وطن سے بے دخلی اور طویل اور ظالمانہ غیر ملکی قبضے کو برداشت کرنا شامل ہے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کے حالیہ جنگی جرائم کی مذمت کی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوشش حماس رہنما سبیل الہندی نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی تجاویز پر اپنا واضح رد عمل جلد۔ بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے تمام میچز ایک ہی شہر میں رکھے جائیں گے۔ پی سی بی کی ICC کو تجویز، چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سفر کم رکھنے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کے مطابق تجویز کا مقصد پاکستان میں قیام کے دوران بھارتی ٹیم کی آمد و رفت کم رکھنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئنز ٹرافی کا ابتدائی ڈرافٹ شیڈیول ICC کو بھیج چکا ہے۔